Hello everyone. So welcome back to my channel Anisar's Technology. So today we are going to discuss some very important questions of C programming language with the proper dry run and practical implementation. Okay. So without wasting the time, we will start our programming session. Write a program to input two number and print sum product and average. Write a program to input two numbers and print which one is greater. Oh, this is the list of the questions which I will solve in front of you. Just 1 minute. Let me start. So first question is write a program to input two number and print sum product and average. So just a moment, please. Let me start the Turbo V++. Okay, this is. So basically I'm writing the program in the C language environment. Okay, so I'm just going to the new. Okay. Windows plus F5 for the expansion of a screen. पूरी स्क्रीन हमारे सामने है. अब सबसे पहले हम फाइल्स को इंक्लूड करेंगे. तो stdio.h and conio.h. These are the two essential files, जरूरी files हैं. stdio means standard input output.h. It is used to provide the printf and scanf. Scanf is used to provide the get ch and clr, scr and some other functions also. Wide main. This is my main function. CLR SCR is used to clear the screen and get ch. Okay. Now I'm just creating the program. So my first program is write a program to input two number and print sum product and average. So for that we have to take the input, and before that we have to take some variable a, b and sum and piece for product, and for average we can take in the double. Maybe some fractional values can be stored, the fraction values can be stored in the average. So printf enter first number, scanf %d and %a. This is the address operator used to get the address of the variable so that the value can be stored in proper variable. Enter second number, scanf %d comma and %b. Now input part is over. Now we can just store the sum of two variable. अब हम दोनों वेरिएबल का सम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लाइक a plus b and product is equal to a asterisk b and average is the sum of observation divided by number of observation. So there are basically two number. So we have to take the 2.0 because न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक का फ्रैक्शनल में होना जरूरी है, otherwise you will not get the proper fractional result. Now input part is over and we have done the processing, sum, product and average. Now we can print the result. Sum %d comma sum. Just a moment please. Printf. Okay. Now after printing the sum, I just want to break the line. So here \n. Product %d comma \n comma p. It is basically for product. This %d is a format specifier. %d means the value which we are printing, जो value हम print करने जा रहे हैं वो integer है. एवरेज के लिए हम लोग डबल यूज कर रहे हैं, तो डबल के लिए LF. LF is a format specifier for printing the double value. Now just a moment.
Now let me compile this code. There is no error. Now I can run this code. Okay. This is sum 3 plus 2 5 and 3 into 2 6. 5 divided by 2 and 2.5 and 5 times 0 is a average. Okay, all right. So this is my first program is prepared. And I don't think that some dry run is required. Okay, it's a simple program taking the two values as the input and taking the sum after that. उसके बाद हम उसका product store कर रहे हैं. Then after that average and printing. Okay. Now इससे हमने कुछ चीजें important देखी कि percentage D is for integer format specifier and percentage LF is for double. Okay, my first program is over. Now what about the second program? 1 minute. Just a moment, please. Okay, this is my second program. Now what about the second program? Write a program to input two number and print which one is greater. Which one is greater means suppose we are taking the two values as input, तो उसमें से A भी greater हो सकता है और B भी. तो हमें check करना होगा condition wise. So just a moment. तो इसी program में कुछ थोड़ा सा changes हम कर देते हैं. In this program the double is not required and two number is already inputting and ये वाला part हम यहाँ से remove कर सकते हैं. Okay, shift L. Okay, because there is a very great huge list, तो हमें थोड़ा सा speed up होके programs को run करना. Printf \n. Okay. Now it is used for breaking the lines, two lines break. If A is greater than B, printf the greater number is percentage D comma A. Greater number is percentage D comma B. So we are taking two number as input. हम दो numbers input ले रहे हैं. अगर A B से greater है then A will be print और अगर A B से greater नहीं है in that case B will be print. तो दोनों में से जो greater value होगी वही print होगी. There is no error. Let me run this code. 10 and 20. So according to the input अगर हम देखें तो 20 is greater. So the greater number is 20. No problem. Let me run this again. 100 and 80. So 100 is greater. Understand? My second program is completed. Now what about the third program? In the third program we have to check input two number and check even or odd. No, actually there is a minor mistake. Input a number. एक नंबर हमें इनपुट करना, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक इवन और ऑड. वो नंबर इवन है या ऑड है. तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक वी कैन टेस्ट. सो इन दिस प्रोग्राम ओनली वी हैव टू टेक अ सिंगल इनपुट. तो आई डोंट थिंक दिस मच कोड इज रिक्वायर्ड. ओके, so just a moment please. A, so enter number. Okay, I'm just changing some statement. Enter number. Now I have to check if A modulus 2 is equal to 0. अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है, रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है कि वो इवन है. printf the number is even और हम चाहते हैं कि साथ में वो वैल्यू भी डिस्प्ले हो, तो परसेंटेज डी एंड ए. The number is odd percentage D comma A. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो इवन है और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है तो वो ऑड है. Let me compile. There is no error. I have given the 4.
4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली वी विल गेट रिमाइंडर 0. So it's absolutely even number. The number is even and the 4 is coming as an output. Again 7. The number is odd and also I am printing the number 7. Simple program. So I am not taking so much time in dry run. आगे के मेजर क्वेश्चंस में हम ड्राई रन करेंगे. ठीक है, तो एक नंबर हमने इनपुट कराया, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है एंड आफ्टर डिविजिबल आफ्टर डिवाइडिंग द 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर अगर 0 दे रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड्स द रिमाइंडर, तो वो इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा. ओके, लेट मी चेक द अनदर क्वेश्चन. इनपुट 3 नंबर एंड प्रिंट विच वन इज ग्रेटर. अब हमें चेक करना है कि अगर नंबर हमारा ग्रेटर है, सॉरी, इनपुट 3 नंबर और उसमें से कौन सा ग्रेटर है. तो इस प्रोग्राम के लिए हमको कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने हैं. तो जस्ट अ मोमेंट. Here I am writing the program. Okay. Just a moment. This is actually magnifying. Okay. So which program we are going to? I think there are some issue. Just 1 second, please. Okay. Now we have to take 3 number as an input. और इन 3 नंबर में हमें ये चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो printf enter first. इन नंबर को हम एक साथ भी इनपुट करा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एंड printf enter second number, scanf %d comma and %b. Similarly, enter third number, scanf %d and %c. इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर. अब इन तीनों नंबर में कोई भी ग्रेटर हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना होगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर. तो अगर a ग्रेटर देन b है एंड a ग्रेटर देन c, हियर एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. ये चेक करता है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तब तक एंड ऑपरेटर ऑपरेट नहीं होगा. तो एंड ऑपरेटर के लिए जितनी भी कंडीशंस हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं सबका ट्रू होना जरूरी है. तो a को ग्रेटर हम तब कंसिडर करेंगे जब वो b से भी ग्रेटर हो, साथ ही साथ a c से भी ग्रेटर हो. देन प्रिंट द ग्रेटर नंबर इज %d कॉमा a. अब अगर a ग्रेटर देन नहीं है देन एल्स इफ. अब हम b को चेक करेंगे, b अगर ग्रेटर देन a है एंड b ग्रेटर देन c, then printf the greater number is %d comma b. और अगर a भी ग्रेटर नहीं है और b भी ग्रेटर नहीं है then definitely उस केस में c ग्रेटर होगा. तो c को हम बिना चेक किए ये डिक्लेयर कर सकते हैं द ग्रेटर नंबर इज %d comma c. तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर a b से ग्रेटर है और साथ ही साथ a c से भी ग्रेटर है
तो डेफिनेटली ए सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा तीनों नंबर में, तो हमने ए को प्रिंट कर दिया। अगर b ग्रेटर देन a है और b ग्रेटर देन c है तो फिर b ग्रेटर होगा, और अगर a और b दोनों ग्रेटर नहीं है, इन दैट केस c विल बी द ग्रेटेस्ट। लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम, देयर इज नो एरर एंड वी हैव टू गिव 3 numbers, so 10, 5 and 80. You can see that the greater number is 80 is coming on the screen as output. Okay. 8. You can see the greater number is 8 is coming. Okay, one more time. 40, 5 and 7. The greater number is 40. Means all the numbers are properly checking and the output is coming on a screen. Absolutely fine. One second. Suppose the value of A I have taken 2, the value of B I have taken 6 and the value of C I have taken 10. So let me check. A is greater than B? No. You can see A is not greater than B. B is greater than A? Yes, B is greater than A, but B is not greater than C. So AND operator तब तक ऑपरेट नहीं करता जब तक सारी कंडीशंस ट्रू ना। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी है, और ये कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, देन डेफिनेटली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और C प्रिंट हो जाएगा एंड द C इज 10. This is a small dry run of this program. Okay. Now it's fine. Okay, I think that it is clear to all of you. सबको clear हो गया है. Now just I want to move to another question. दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी मूव करते हैं। वो क्या है? Input a number and check whether it is prime or not. प्राइम नंबर के रिगार्डिंग आपको बता दें कि ऐसे नंबर प्राइम होते हैं जिनके 2 फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल सपोज n is 7, तो 7 के 2 फैक्टर हैं 1 और itself, so it will be definitely prime. अगर हम 8 फैक्टर का मतलब होता है नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर्स। अगर हम 8 की बात करें तो 8 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी। तो इसके फैक्टर 8 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। तो जल्दी से हम लोग प्राइम प्रोग्राम बनाने के लिए सी इन्वायरमेंट में जाते हैं, प्राइम प्रोग्राम। ओके, उसके बाद फैक्टोरियल है, देन परफेक्ट। तो प्राइम ओके, जस्ट अ मोमेंट, expand the screen. Num, enter number, percentage D and %num. This code is not required or needed, इसकी जरूरत अभी नहीं है। I is for looping purpose and C is a counter variable. ओके, हमारी लॉजिक ये है कि हम नंबर के फैक्टर्स काउंट करेंगे। अगर किसी नंबर के फैक्टर का काउंट 2 के बराबर है
तो इसका मतलब है कि वो प्राइम है, और अगर 2 से ज्यादा है तो प्राइम नहीं हो सकता। तो फॉर i इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का फैक्टर सबसे पहला 1 होता है, i लेस देन इक्वल टू num एंड i प्लस प्लस। इफ num मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, अगर num i से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो इट मींस i num का फैक्टर है, देन C++ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन। इफ C is equal to 2, number is prime. Okay, let me compile, there is no error, run. 7, the number is prime, 7 is a prime number, 7 के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7. 8 नंबर इज नॉट प्राइम, 8 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, 8 के फैक्टर्स हैं 1, 8 का फैक्टर है 2, 8 का फैक्टर है 4, 8 का फैक्टर है 8 itself, so it cannot be a prime. Like 11 is a prime number, 14 is not a prime number. Okay, my program is checking properly all the prime numbers. Okay, fine. This is a program I have created. I am just simple counting the number of factors. एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर का काउंट 2 के बराबर है तो इसका मतलब नंबर प्राइम है। दिस इज अ फैक्टर काउंटिंग। मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं, ठीक है। काउंटिंग द फैक्टर ऑफ द इनपुट नंबर, और इस कंडीशन से हम लोग चेक कर रहे हैं, checking if num is divisible by I, that means I will be the factor of num. All right, program is running properly. Now इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाना है। तो फैक्टोरियल प्राइम के ठीक बाद फैक्टोरियल, ओके। तो फैक्टोरियल के लिए व्हाट आर द फैक्टोरियल, पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लें। फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज n की वैल्यू 4 है, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हुए 4 तक आते हैं इन दिस मैनर, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, जो इसका ओवरऑल प्रोडक्ट आता है, दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ n। होप यू अंडरस्टैंड। अगर n की वैल्यू 4 इनपुट होती है, देन वी हैव टू प्रिंट 24 एज अ फैक्टोरियल, okay. Just coming to the programming window, enter num, and this much I want to delete, okay. Now one variable I have to take, f is equal to 1 for collecting the factorial, I is equal to 1, I less than equal to num and i plus plus। हमने लूप 1 से उस नंबर तक चलाया है जिस नंबर का फैक्टोरियल हम चाहते हैं। तो नम में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से नम तक हमने एग्जीक्यूट किया। f इज इक्वल टू f इंटू आई, ऑलमोस्ट डन। प्रिंट f, फैक्टोरियल इज %d कॉमा, let me check 4, the factorial of 4 is 24, जैसा अभी हमने ड्राई रन में डिस्कस किया। the factorial of 5 is 120,
अगर कोई बड़ा नंबर आप देते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर INT की जगह पर लॉन्ग यूज कर सकते हैं फॉर हायर बिग डेटा टाइप्स के लिए, लेकिन अभी लॉजिकली हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। ओके, आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर सकते और उसका ड्राई रन भी साइड साइड कर सकते। नाउ which one is the second question? Perfect number. What are the perfect number? परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर का सम, हम ये क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी हाईलाइट दिस क्वेश्चन। Write a program to input a number and check whether it's perfect or not. तो जैसे 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है, तो 6 के सारे फैक्टर्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे। So these are the possible factors of 6, लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। The number itself will not include as the rule of perfect. तो हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं इनका सम अगर किया जाए और सम करने के बाद अगर हमें वही नंबर मिल जाता है जो हमने ओरिजिनली नंबर लिया है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं, देन वी कैन मूव टू द एरे पार्ट। जस्ट आई वांट टू क्लियर ऑल दिस। ओके, तो प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब इनपुट पार्ट इज ओवर, डन। आई एंड एस इज इक्वल टू 0। एस का डिस्क्रिप्शन ये है कि एस विल स्टोर द सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर। तो हम आई लेस देन इक्वल टू नम नहीं, आई लेस देन नम, क्योंकि किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर 1 होता है और सबसे लास्ट फैक्टर वो खुद होता है, तो वो खुद को हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेस देन यूज किया। अगर हम इक्वल टू कर देंगे तो नंबर इटसेल्फ विल आल्सो बी इंक्लूडेड एंड माय लॉजिक विल गेट फेल। तो हमने नम को इंक्लूड नहीं किया। इफ नम मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, अगर नम आई से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, इट मींस आई इज द फैक्टर ऑफ नम, तो उस फैक्टर को हमें एस में ऐड करना है। तो एस में सारे फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आफ्टर द लूप आई विल चेक इफ एस इज इक्वल टू एन, यानी कि फैक्टर का सम अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर है, ओरिजिनल नंबर हमारा नम है, द नंबर इज परफेक्ट, एल्स the number is not perfect. Okay, program is almost done. Now I just want to compile for checking the syntax error. There is no error. 6 is a perfect number, we have discussed. 7 is not a perfect number. Hope you understand. Okay. Now, just want to move to the next question. Which one is the next question?
Now this program is solved. We have solved actually 7 questions. This is a 10th question going to solve. ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. Write a program to input 10 number in array and input another number for search and check that number is present in the array. It is called linear search. It is called linear search. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं थोड़ा सा ड्राई रन आपको देना चाह रहा हूं. उसके बाद इसको बनाते हैं. सपोज दिस इज n और इस n में 10 ब्लॉक्स हैं. दिस इज एन एरे ऑफ 10 ब्लॉक्स. Eight and 9. This is the array. Now, of course, इस array के अंदर कुछ elements होंगे. Array is a collection of similar data type. It is also, we can say that it is a collection of homogeneous data items. मतलब अगर हमने integer की array बनाई है, then all the element must be integer. अगर हमने फ्लोट की एरे बनाई है तो सारे एलिमेंट आपके फ्लोट टाइप होने चाहिए. और एरे हमारी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे वर्क करती है. तो इसे हमें पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विथ फिक्स मेमोरी साइज. उसके बाद ही हम इसे यूज कर सकते हैं. अब ये हमारी एरे है. हमने यूजर से एक नंबर इनपुट किया 5. तो हमें चेक करना है कि 5 किसी ब्लॉक में प्रेजेंट है. तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बट यहाँ प्रेजेंट. तो अगर हमारा नंबर हमारे एरे का पार्ट है या प्रेजेंट है, देन we display the number is found. Otherwise number is not found. And after finding the number, we can stop the searching procedure. आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. Now, without wasting the time, जल्दी से इसका प्रोग्राम बनाते हैं. तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे. सबसे पहले हमें एक एरे कंस्ट्रक्ट करनी है. तो सी लैंग्वेज में एरे इस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है. आई इज फॉर लूपिंग पर्पस, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं आपको. एंड एस इज फॉर नंबर टू बी सर्च, जो नंबर हमें सर्च करना. अब सबसे पहले i is equal to 0, i less than equal to 9. हमने 0 से लेकर 9 तक लूप चलाया, क्योंकि जब हम 10 की एरे लेते हैं तो जो ब्लॉकिंग्स होती हैं, जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, उनकी नंबरिंग 0 से 9 होती है. printf enter number, scanf %d and %n of i. इस तरह से एलिमेंट्स एरे में इनपुट होते हैं. तो 10 एलिमेंट्स हमारे इनपुट हो गए. आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली. इंटर नंबर टू बी सर्च. जो नंबर हमें ढूंढना है उसे हम इनपुट करा रहे हैं एस में. इनपुट पार्ट इज ओवर. नंबर इनपुट इन एरे, ये कमेंट्स हैं. सर्चिंग एलिमेंट इनपुट, ये वो नंबर इनपुट हो रहा है जो सर्चिंग एलिमेंट. अब हम सर्चिंग विल स्टार्ट. अब हम सर्चिंग को स्टार्ट करेंगे. तो सर्चिंग हमें करनी है 0 स्टार्टिंग लोकेशन से.
इफ अगर n का i s के बराबर है, s वो नंबर है जो हमें सर्च करना है और n ऑफ i हमारे एरे की लोकेशन है। तो अगर नंबर हमें मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, तो हम यहां पर लिखेंगे printf नंबर्स फाउंड और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को और सर्चिंग प्रोसीजर दोनों को टर्मिनेट कर देंगे। तो टर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं गेट ch एंड रिटर्न इन कंबाइंड मैनर। और अगर मान लो हमें नंबर नहीं मिलता है और पूरी एरे हमारी कंप्लीट हो जाती है, सर्च हो जाती है, तो बाहर हम डिस्प्ले कर सकते हैं नंबर इज नॉट फाउंड। क्लियर? Let me compile this code. There is no error. There is no error. The code is compiled properly. Now go for running. First number हमने दिया 1 2 3 5 6 7 8 9 4 5 कोई भी हमने 10 रैंडम नंबर्स। इंटर नंबर टू बी सर्च, हम 5 को सर्च कर रहे हैं। नंबर इज फाउंड, 5 हमको मिल गया, नंबर इज फाउंड, नंबर इज इन द लिस्ट। ओके, जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे हम प्रोग्रामिंग विंडो में वापस। अब हम नॉट फाउंड के लिए भी एक बार रन कर लेते हैं। हमने 100 को सर्च करने की रिक्वेस्ट डाली, क्या 100 हमारी लिस्ट में नहीं है या नहीं? तो आप देख सकते हैं कि 100 हमारी लिस्ट में नहीं है। देन आउटपुट विल बी प्रिंट नंबर नॉट फाउंड। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। इसके बाद क्वेश्चन है सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग का पूरा प्रोग्राम मैं आपको यहां पर लिख कर दिखा रहा हूं। ये सर्चिंग थी, इसी में मॉडिफिकेशन करके ये पूरी सर्चिंग है। आप इसे नोट कर सकते हैं, इट विल बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो इनपुट तो हो रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, बस हमें इन्हें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम बबल सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। i less than equal to 8 and i plus plus। पहला लूप हमारा नंबर ऑफ स्पैनिंग्स के लिए चलता है। इसके लिए हमने डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने सॉर्टिंग के बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो इट्स माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ड्राई रन पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। j is equal to 0, j less than equal to 8 and j plus plus। If n of j is greater than n of j plus 1, अगर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से ग्रेटर है तो हम उसे स्वैप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल। ओके, हर एक स्पैनिंग के बाद एक एक एलिमेंट सॉर्ट होता जाता है, तो हम एक एक स्टेप कम करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर -i यूज करते हैं। इससे हर एक स्पैनिंग के बाद एक एक स्टेप कम हो जाएगा। नाउ सॉर्टेड एरे डिस्प्ले। जस्ट 1 मिनट। अब हम उस एरे को डिस्प्ले कर रहे हैं जो सॉर्ट हो चुकी है। एंड दिस टेक्निक
जो मैंने यूज करी है उसे हम लोग बबल सॉर्ट कहते हैं। यहां पर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज किया है, इसे हम यहां पे भी डिफाइन कर सकते हैं और ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जे यूज किया है, हम जे को यूज करें। जस्ट 2 लाइन ब्रेक, हम चाहते हैं 2 लाइन ब्रेक हों इनपुट से पहले। लेट मी कंपाइल, देयर इज नो एरर। This program is bubble sort. Now you can see the output 10, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 7, 9. And this is the sorted array displaying on a screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, no problem. अगर आप चाहते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ग्रेटर की जगह पर बस साइन लेस कर दीजिए। नाउ योर डेटा विल बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज योर रैंडम डेटा जो सॉर्ट होना है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहां पर साइन चेंज करना होता है लेस का, और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ग्रेट। All right, so thanks to all of you. We have done almost all the questions of this segment. Okay, if you face any kind of problem to understanding these questions, please let me know. Okay, so thanks to all of you. This is all about the programming execution of C language.